In today's video, we'll see a lecture of sequence, and in sequence, we'll be concerned with real sequence only. So let us see the definition of real sequence. What is real sequence? Since we are here concerned with real sequence, so in the upcoming video, I'll use only word sequence for real sequence. Okay, so what is the definition of real sequence? A mapping f from natural number to real number is said to be a real sequence or sequence in R. Okay, let us see some examples of these real sequences. First one, one more thing I need to tell you is that what is the notation which is to be used for real sequence. Okay, so the notation which will be used is f of n in this way. You can use here curly braces also. Okay, and this one is also used, f of 1, f of 2, f of n, so on. Okay, uh, these f of this f of 1 is nothing but a value of that function f on giving input as 1, and this one as 2, and similarly n and so on. ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सीक्वेंस को दे कोरिलेट विद सेट. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस नोटेशन, क्योंकि इस नोटेशन में ऐसा लगता है कि ये एक सेट टाइप का दिखता है, बट एक्चुअली इट्स जस्ट अ नोटेशन फॉर अ सीक्वेंस. तो इसके लिए बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये एक सेट है, बट एक्चुअली इट्स नथिंग बट अ फंक्शन मैपिंग, ना कि एक सेट. ये एक नोटेशन है जिसके कारण कंफ्यूज होते हैं लोग. एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं. एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन देखते हैं. ठीक है, इसके क्या होंगे? तो इसके होंगे एफ ऑफ 1 होगा 1, एफ ऑफ 2 होगा 2, एफ ऑफ 3 होगा 3 एंड सो ऑन. ठीक है, सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं. एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन. इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? इसके एलिमेंट्स होंगे 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन. Okay, this is one of the famous example because it will be used throughout this lecture. real sequence ये हमेशा बहुत जगह काम आएगा, तो इसको हमको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा काम आता है. ठीक है, ये सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं. इसको नोटेशन ऐसा भी दे सकते हैं. सिंस हमने एफ ऑफ एन को ऐसे डिफाइन किया है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम. ये कुछ नहीं है बल्कि ये यही है. ठीक है, दिस इज व्हाट रियल सीक्वेंस. तो ये हमने डेफिनेशन देख लिया कि रियल सीक्वेंस होता क्या है. अब देखते हैं रियल सीक्वेंस में बाउंडेड सीक्वेंसेस. ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंसेस देखते हैं क्या होता है बाउंडेड सीक्वेंस. ओके, अ सीक्वेंस fn is said to be bounded above if there exist, it's a symbol for there exists. Okay, if there exist a real number b, if there exists a real number b such that f of n is less than or equals to capital B for all n belongs to natural number. Okay, means each and every functional value must be less than or equals to some real number, then that sequence will be known as what? Bounded above.
And what about bounded below? In the same way, we can define that a sequence f of n is said to be bounded below if there exists a real number small b such that f of n is greater than or equals to small b for all n belongs to capital N. मीन्स हर एक फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, हर एक फंक्शनल वैल्यू इन द सेंस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, दिस ऑल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्मॉल बी, दिस रियल नंबर इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है. तो दैट सीक्वेंस विल बी नोन एज व्हाट, बाउंडेड बेलो. इफ दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड above, if that sequence is bounded above and bounded below, then it will be known as what, bounded sequence. Okay, in point set topology we have studied that bounded set will have supremum property, ठीक है, bounded set will have supremum property in real number only, means that set must be what, subset, that set must be a subset of real number, तब उसके पास supremum property होगी. In the same way जो sequence हमको मिलता है उसका जो रेंज सेट बनेगा, रेंज सेट इन द सेंस जैसे कि इसमें रेंज सेट बनेगा 1 2 3, इसमें पूरे रहेंगे, इसमें 1 1/2 1/3, और जैसे कोई कांस्टेंट सीक्वेंस आया एफ ऑफ एन इक्वल्स टू, मैंने डिफाइन किया है 1, तो इसमें क्या होंगे, सीक्वेंस जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, लेकिन रेंज सेट वो बने, रेंज सेट जो बनेगा, रेंज सेट इसका वो क्या रहेगा, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा. इसका जो रेंज सेट बनेगा उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, उसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ये उसका रेंज सेट है. तो वैसे ही इसमें भी बाउंडेड अगर सीक्वेंस हो गया तो उसमें हम सुप्रीमम और इन्फीमम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. सुप्रीमम हमको पता है लीस्ट अपर बाउंड होता है LUB, और इन्फीमम जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB होता है, ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस. लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस होता क्या है, ठीक है. लेट f of n बी अ सीक्वेंस और रियल सीक्वेंस, ठीक है. लेट f of n बी अ सीक्वेंस, अ रियल नंबर L is said to be limit of f of sequence or of sequence fn if for a given positive epsilon there exists a natural number k such that mod of f of n minus L is less than epsilon for all n is greater than or equals to k. मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है. कोई सीक्वेंस अगर fn दिया है, कोई सीक्वेंस अगर fn दिया है तो उसका जो है कोई एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा हमको L, ठीक है, एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा. उसके साथ जब हम सब्ट्रैक्ट करके उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो हर एक एप्सिलॉन वैल्यू के लिए इट मे बी वेरी स्मॉल, ये आप जितना भी स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो फॉर दैट वैल्यू देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k, कि उसके बाद के जो नेचुरल नंबर हो गए, सपोज ये एक एग्जांपल एक बताऊंगा उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. उसके बाद के जो वैल्यूज आएंगे फंक्शनल वैल्यू f ऑफ
के, एफ ऑफ के प्लस वन, एफ ऑफ के प्लस टू, इसमें से जब एल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है एप्सिलॉन से छोटा आएगा। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा क्या हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, सपोज जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि मैं एक हमारा सीक्वेंस है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू वन अपॉन एन वाला सीक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, इसको देखने की कोशिश करते हैं ये दिखेगा कैसे। ठीक है, इसको हम एक्स और वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं। ये फंक्शनल वैल्यूज है उसको वाई एक्सिस में करता हूँ, और जो नेचुरल नंबर का पॉइंट्स है उसको मैं एक्स एक्सिस में करता हूँ। दिस इज 1 2 3 4। ठीक है, ये हुआ 1। तो 1 पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट एक। 2 पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/2 में। 3 पे 1/3 में, ये सपोज यहाँ कुछ द सेम वे 4 में। ठीक है, ये कुछ ऐसा जाएगा। ये इसको जोड़ना तो नहीं है क्योंकि बाकी यहाँ पे वैल्यू हम दे नहीं रहे, फ्रॉम एन टू आर होता है फंक्शन, तो बाकी वैल्यूज हम नहीं बोल सकते। बाकी हम कर्व देख पा रहे हैं कि ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स को ये जो बोलना चाह रहे हैं वो क्या है एक्चुअल में। ठीक, तो अगर मैं लूँ सपोज ये फंक्शन हो गया, एप्सिलॉन को अगर मैं डिफाइन कर देता हूँ, सपोज एप्सिलॉन इज 0.5, 0.5 है। ठीक है, 0.5 है मतलब फंक्शनल वैल्यू में हमको एल को घटाना है। ठीक है, इसमें एल लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट होगा 0। ठीक है, एफ ऑफ एन माइनस एल, तो इसका वैल्यू जो है लेस देन 0.5 आना चाहिए। तो फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे जो के है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एप्सिलॉन पे। जैसे ही हम एप्सिलॉन को चेंज करेंगे वैसे ही के चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, अभी के लिए एल तो यहाँ पे 0 है, तो फंक्शनल वैल्यू क्या होना चाहिए, 0.5 से छोटा होना चाहिए। तो 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इसके इक्वल हो जाता है, तो स्ट्रिक्टली है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। तो 3 से लेना है, तो 1/3 जो है 0.5 से छोटा होता है। ठीक है, 0.5 मतलब 1/2 होता है ना ये, तो 1/3 छोटा होगा। तो एन के क्या आएगा 3। जैसे 0.5 को मैं अगर 1/3 किया, 0.5 को 1/2 था उसको 1/3 किया, तो ये 1/3 नहीं आएगा, 4 आएगा। तो ये के हो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो k इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, ये डिपेंडेंट होता है एप्सिलॉन पे, उसके बेसिस पे चेंज होता है। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, अगर मैं एप्सिलॉन को 1/2 ले रहा हूँ, तो एप्सिलॉन को अगर 1/2 ले रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, नेबरहुड, ये -1/2 है। ठीक है, ये जो एफ ऑफ एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसको अगर मैं आगे करूँ मॉड की प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी से हमको ये मिलेगा, और एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ये मिलेगा। मतलब एफ ऑफ एन का जो वैल्यूज होगा दैट विल बी इन द नेबरहुड ऑफ एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, मतलब एल के नेबरहुड में, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल, उसी के आसपास जो फंक्शनल वैल्यूज रहेंगे, कौन से, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, वो सब वहीं रहेंगे, उसी के अंदर में रहेंगे, मतलब उसके बाहर में नहीं जाएंगे। ठीक है, नाउ नया टर्म देखते हैं, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस रिलेटेड विद दिस वन, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस से कुछ हद तक रिलेटेड है। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस fn is said to be convergent. Is said to be convergent sequence. Is said to be convergent sequence if it has limit L belongs to real number. बस अगर इसके पास लिमिट है then that sequence will be known as convergent sequence. इसके मतलब ये रिलेटेड है बस इसी से, इसमें कुछ नहीं है। इसको हम बोलते हैं, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल भी बोलते हैं, और इसका एक तरीके से हम लिखते भी हैं कि लिमिट n tends to infinity f of n equals to L, means whenever this n goes to infinity our functional value will be L in this, just like here
देख रहे हैं कि हमारे जो फंक्शन, जब नेचुरल नंबर है इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है तो फंक्शनल वैल्यू 0 पे जा रहा है, वही है। ठीक है, इसका नोटेशन ये भी है, लिमिट एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एल। यहाँ पे इन्फिनिटी, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी को ओमिट कर देते हैं, क्योंकि mainly we will concerned here in real sequences with n tends to infinity। ठीक है, सो हम यहाँ पे उसको दिखाएंगे नहीं, जरूरी नहीं है, हम उसको ओमिट भी कर सकते हैं। तो लिमिट एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एल हो जाएगा। ये लिमिट हो गया, लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सो कन्वर्जेंस हम देख लिए क्या होता है कन्वर्जेंट। अब देखते हैं सीक्वेंस को एक्चुअल में डिवाइड किस तरीके से किए हैं। ठीक है, सीक्वेंस का डिवीज़न कैसे हुआ है। सो अगर कोई सीक्वेंस है तो अभी देखा हमने क्या, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो सकता है। ठीक है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है। अब ये डाइवर्जेंट क्या है, तो डाइवर्जेंट में दो है, क्या है, एक प्रॉपरली डाइवर्जेंट, एक इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट, प्रॉपरली और एक इम्प्रॉपरली, ये हो गया। तो डाइवर्जेंट होता क्या है, तो जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है दैट विल बी नोन एज डाइवर्जेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर रियल नंबर पे जाके कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो वो डाइवर्जेंट होगा। तो कोई सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस को डाइवर्जेंट में कुछ टर्म्स आते हैं, मतलब कहाँ जाएंगे, डाइवर्जेंट है तो मतलब इन्फिनिटी पे जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी पे जाएंगे, तो वही है डाइवर्जेंट। सो सीक्वेंस इज सेड टू डाइवर्ज टू इन्फिनिटी if for a positive real number, if for a positive real number g। ठीक है, डाइवर्ज टू इन्फिनिटी देख रहे हैं ना, सीक्वेंस इज डाइवर्जिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, डाइवर्जिंग टू इन्फिनिटी if for a positive real number g there exists natural number k such that f of n is greater than g for all n is greater than or equals to k। मतलब k के बाद के जितने भी फंक्शन, k के बाद के जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उन पे जो फंक्शनल वैल्यूज आएंगे, उन पे जो फंक्शनल वैल्यूज आएंगे उनका जो वैल्यू होगा वो g से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब है कोई, ये जो हमारा सीक्वेंस है वो बाउंड नहीं हो पा रहा है, बाउंडेड नहीं हो पा रहा है, ये बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये डाइवर्स टू इन्फिनिटी बोलेंगे। और डाइवर्जिंग टू माइनस इन्फिनिटी कब बोलेंगे, दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जिंग टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, sequence will be known as diverging to minus infinity if for a positive real number g there exists natural number k such that f of n is less than minus g, f of n is less than minus g for all n is greater than equals to k। मतलब वो सभी फंक्शनल वैल्यूज एफ ऑफ के प्लस वन, यहाँ से n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k है, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ के प्लस वन, ये सभी क्या होने चाहिए, माइनस जी से भी छोटे होने चाहिए। ठीक है, उसके पार चले जाए तो ये क्या कहलाएंगे, डाइवर्जिंग टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये ऐसे ही फंक्शन को हम प्रॉपरली डाइवर्जेंट बोलते हैं, या तो इन्फिनिटी पे जाए या फिर माइनस इन्फिनिटी पे, तो हम बोलेंगे प्रॉपरली डाइवर्जेंट। क्या है इसके एग्जांपल्स, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन प्रॉपरली डाइवर्जेंट है, इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, माइनस एन माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। अब इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट क्या है, तो फिर इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट पे देखते हैं तो एक ओके, तो इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट में क्या आएगा, तो उसमें आएगा दो चीज, एक क्या, ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट ऑसिलेशन, पहला है ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट ऑसिलेशन। ठीक है, सेकंड है ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट ऑसिलेशन। ठीक है, इनफाइनाइट ऑसिलेशन, तो ये क्या है, अब ये दोनों क्या है, तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट ऑसिलेशन क्या है, तो इफ अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है,
अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है तो दैट सीक्वेंस विल बी नोन एज ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट ऑसिलेशन। फॉर एन एग्जाम्पल अगर दूं तो -1 की पावर n ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है f ऑफ n इक्वल्स टू -1 की पावर n, ठीक है। इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, -1 1 -1 दिस वे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट भी नहीं है ना तो डाइवर्जेंट है, प्रॉपरली डाइवर्जेंट है शुड से, ठीक है। तो ये क्या है, ये इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट में क्या है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन हो रहा है लेकिन फाइनाइट हो रहा है, 1 पे जा रहा है, -1 पे आ रहा है, 1 पे जा रहा है, इन दिस वे, ठीक है, ऑसिलेट हो रहा है। और दूसरा क्या था, ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट ऑसिलेशन। तो कोई भी अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा ना जो प्रॉपरली डाइवर्जेंट नहीं होगा, जैसे कि f ऑफ n अगर हम ले तो -1 की पावर n इंटू n, ये इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, तो -1, ठीक है, -1 2 -3 4 इन दिस वे, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, -1 जा रहा है, 2 जा रहा है, मतलब विल नॉट बी एबल टू फाइंड सच अ नेचुरल नंबर जिसके बाद के फंक्शनल वैल्यूज एक पर्टिकुलर g, जो मैंने बताया अभी, पर्टिकुलर g से या तो छोटा रहे पूरा या तो बड़ा रहे, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। बिकॉज देखिए हर एक ऑड टर्म में नेगेटिव वैल्यू आ जा रहा है और इवन टर्म में पॉजिटिव वैल्यू आ जा रहा है, तो नाइदर इट इज डाइवर्जिंग टू इन्फिनिटी नॉट टू -इन्फिनिटी। सो ये बोल सकते हैं ये क्या है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट ऑसिलेशन। तो ये किस पे आएंगे, ये दोनों जो है आएंगे इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट पे।